Hello everyone, I am Sajan Bharadwaj and today I am going to take the easiest topic of your lesson number 4. And the name of the topic you can see over here, that is homologous series. It is the easiest one, it is the smallest one. Because once you get the proper idea, you can write the complete series in seconds. That is why I always say this is the easiest part of this lesson. When I use the word series, before discussing the actual topic, I would like to discuss an example. Students, in maths you have studied many series. Maybe शायद आप जानते ही नहीं हो कि ये भी एक सीरीज होती है. You have studied the lot of tables. आपको याद करिए बचपन में 2 1 2 2 2 4 बहुत सारे आपने रटे हैं, ठीक है. अब अगर हम इस तरह से लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 like this, or you write like this 5 then 10 then 15 then 20 then 25 then 30 like this. अब मैंने डाउनवर्ड लिख दिया है, आप इसको बोर्ड पर चाहे इस तरह भी सीधा लिख सकते हैं. What is common there in series? इस सीरीज में क्या चीज कॉमन है? As you write the first term, the next term you add 2 and you will get it. Second term में if you add 2, you will get the next one. You will get 2, add 2 and get the next one. Similarly, here you can write 5 plus, next मिलेगा आपको, यहाँ 5 plus करते next मिलेगा, यहाँ 5 plus करते next मिलेगा. That means these are the series which contain the common difference. And up to infinity you can write them. And ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कार्बन के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है. When the carbon forms its compound with hydrogen, then it can form the various type of series, and those series in brief can be named as the homologous series. I would like to define the series of organic compounds in which all the members can be represented by same general formula. जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, याद करिए एपी में आप कहेंगे सर आप साइंस पढ़ा रहे हैं मैथ्स. Actually, both subjects are correlated with each other. अगर मैथ्स में आपको याद है is equal to a plus n minus 1 into d. Now you can put the value of n. अगर 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म मिलेगा, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म मिलेगा. So it is the general formula. In the same way, every homologous series can be represented by the general formula. So, homologous series is a series of organic compounds, means compound which contain carbon initially along with hydrogen. Sometime उसमें कुछ हेटेरोएटम भी आ जाएंगे, लेकिन अभी मैं सिंपलेस्ट की बात करूंगा. So, I would like to write the series, and we have basically 3 series of हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन की 3 सीरीज हमारे पास. हाइड्रोकार्बन वर्ड मैंने लिखा है यहां पर. अगर मैं ऑर्गेनिक वर्ड लिखता हूं तो ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव दोनों चीजें आ जाएंगी. फिलहाल हाइड्रोकार्बन जो इजी चीज है पहले वो लिखते हैं. देयर आर 3 सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में. ये सीरीज हमारे पास पहली एल्कीन, देन एल्कीन्स, देन एल्काइंस. आप बोलेंगे सर ये आप पढ़ा चुके हैं हाइड्रोकार्बन में. डेफिनेटली मैं पढ़ा चुका हूं. इट इज सिंपली द रेपिटेशन, इसलिए तो इजी टॉपिक बता रहा हूं. हाइड्रोकार्बन में एल्केन को जब आप लिखते हैं तो CN H2N+2, इट इज द जनरल फार्मूला. जब आप एल्कीन को लिखते हैं तो CN H2N, एंड जब एल्काइंस को लिखेंगे तो CN H2N-2. दैट मीन्स एवरी सीरीज हैज इट्स ओन जनरल फार्मूला, राइट.
इसलिए डेफिनेशन फिर रिपीट करते हैं। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which all the members can be represented by same general formula and each successive member, जैसे पहला मेंबर लिखा फिर दूसरा जैसे लिखेंगे, they differ by CH2 group, CH2 का डिफरेंस आएगा and along with 14 AMU 14 मास यूनिट इसका डिफरेंस रहेगा। I would like to take the example of alkenes। पहले एल्कीन का हम एग्जांपल लेते हैं, सभी के एक एक दो एग्जांपल आपको बताऊंगा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जब आप एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन का जनरल फार्मूला लिखिए, CN H2n+2, इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स। पुट द वैल्यू 1 ओवर हियर, जैसे 1 पुट करेंगे यू विल गेट इट 2, यहां n की वैल्यू 1 है +2, इट इज CH4। एंड प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, नेम इज मेथेन, METHANE, मेथेन। अब जैसे आप यहां 2 पुट करेंगे, यू पुट इट 2 C2 H2 into 2 + 2, you will get C2H6, name is ethane, ETHANE। नेक्स्ट वन C3, जैसे पुट करेंगे it is H2 into 3 + 2, you will get C3H8 and name is propane, and so on up to infinity you can write। हालांकि infinity नहीं होता है, but you can write 1 2 3 4 5 6 जितना मर्जी आप नंबर लिख सकते हैं। every time you will get a new member। प्रोपेन मिल जाएगा, उसके बाद ब्यूटेन मिल जाएगा, पेंटेन मिल जाएगा, हेक्सेन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन राइट द मेंबर्स। अब देखिए डिफरेंस, अगर आप CH2 की बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं, तो CH4 एड CH2, इसमें ये मेंबर हमने ऐड किया, तो जैसे आप ऐड करेंगे तो ऐड करते ही बन जाएगा C2H6। सो डिफरेंस कितना हो गया, CH2। फर्स्ट मेंबर के बाद ये सेकंड आपको मिल जाता है। ऐसे सेकंड मेंबर मिला, इसमें आप ऐड करिए CH2 ग्रुप, यू विल गेट C3H8, ये थर्ड मेंबर अपने को मिल गया। इसमें आप फिर CH2 ऐड करिए, यू विल गेट C4H10, फोर्थ मेंबर हमें मिल जाता है। सो इन दिस वे 1 by 1 वी विल गेट द न्यू मेंबर। और अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो बेटा CH2, अब देखो C का एटॉमिक मास 14 होता है, 2 हाइड्रोजन आपके पास है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का डबल हो जाएगा, इसमें 2 ऐड कर दीजिए। सो डिफरेंस विल बी 14 एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली 14U भी कह सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सीरीज जो मैंने आपसे डिस्कस की, एल्केन्स। इन द सेम वे हम सेकंड सीरीज शुरू कर सकते हैं। सेकंड सीरीज इज एल्कीन्स। एल्कीन का जनरल फार्मूला लिखेंगे। एल्कीन का जनरल फार्मूला हमारे पास ये बोर्ड पर रह गया है, जो मैंने 2 इसमें से इरेज कर दिया, 2 इरेज कर दिया है, यहां 2 नहीं है। अब जैसे आप यहां 1 पुट करेंगे, n = 1, you will get C1H2 into 1, that is CH2। That is the first member of this series, but it does not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं और 2 हाइड्रोजन से केवल 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुई, दोनों साइड से सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से हम कहेंगे इट विल नॉट एग्जिस्ट। इसलिए एल्कीन सीरीज का पहला एक्चुअल जो मेंबर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज, यहां 2 पुट करेंगे, n = 2, इट विल C2H2 into 2, यानी C2H4। बिकॉज हियर देयर इज ए डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, पिछले टॉपिक में आपको बताया था, तो यहां पर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस। एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, एक नीचे, हमारे पास दिस विल बी द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर हुआ? सो इट इज द फर्स्ट मेंबर। अब इसमें फिर उसी तरह आप ऐड करते चले जाइए, जैसे आप इसमें CH2 ऐड करेंगे, यू विल गेट C3H6, थर्ड मेंबर मिल जाएगा। तो ये आपके पास पहला मेंबर होना चाहिए था मीथेन,
ये सेकंड मेंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है आपका, इसका नाम रह जाएगा ETHENE, इथीन। सो इट इज द सिंपल वे टू रिप्रेजेंट द सीरीज। कोई बड़ी बात इसमें है ही नहीं। अब जैसे आपने एल्कीन की बात की, यू कैन राइट ऑन द अप टू एटलीस्ट 6 मेंबर। आप ट्राई करिए, सेल्फ ट्राई। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अब थर्ड सीरीज की अगर बात करें, थर्ड सीरीज की जब हम बात करेंगे, द एल्काइन फॉर्मूला विल बिकम CnH2n-2। अगर आप n इजिकल टू 1 पुट करेंगे, यहां पर n इजिकल टू 1, जैसे वहां 1 पुट करेंगे 1, और ये आपके पास H2 into 1 - 2, that is C1H0। That means this compound will again not exist। अब की बार n इजिकल टू 2 पुट करते हैं हम यहां पर। अब जैसे हम 2 पुट करेंगे, इट विल गिव you C2H2 into 2 - 2, that is C2H2। दिस इज 4 - 2, ये 2 बचेगा आपके पास। अब क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सो यू कैन राइट लाइक दिस 1 2 3, एंड वी हैव द 2 हाइड्रोजन लाइक दिस। सो ऑल द 4 valencies of carbon are satisfied over here, so you can write it will exist। अब आपके पास अगर C2H2 आता है, ये सेकंड मेंबर हो गया, नेम विल बी ETHYNE, इथाइन, राइट। अब इसका नेक्स्ट मेंबर आपको चाहिए, यहां लिख रहा हूं C2H2 एंड CH2, क्योंकि हम इस कॉमन ग्रुप की बात करते हैं कि इतना डिफरेंस आना चाहिए, ये हमने ऐड किया। जैसे आप इसे ऐड करेंगे, यू विल गेट C3H4। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, C3H4 ही बना हमारे पास। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर आपके पास कार्बन है लाइक दिस, ट्रिपल बॉन्ड आप यहां दिखा दीजिए। अब नेक्स्ट कार्बन के लिए आप इस तरह दिखा सकते हैं, आपके पास 4H है। अब यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, यहां एक हाइड्रोजन दिखाएंगे और इसके साथ आप बचे हुए 3 हाइड्रोजन दिखा सकते हैं लाइक दिस। काउंट करिए, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए। सो इट इज सेटिस्फाइड, राइट बेटा। सो इट इज द नेक्स्ट मेंबर। इसमें फिर से CH2 ऐड करेंगे, जैसे CH2 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट मेंबर C4H6। So we get 1 by 1। So this is the simple topic in which the series can be obtained। अब ध्यान करिए, ये सीरीज मैंने आपको केवल हाइड्रोकार्बन की बताई है। The series can be of derivative of hydrocarbon also। For example, अगर हम एल्केन की बात करते हैं, एल्केन CnH2n+2, अगर इसमें से एक कार्बन को आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी ग्रुप से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं CnH2n+1OH, या एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया है और उसकी जगह OH आ गया, इट विल बी द सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। इन द सेम वे, अगर ये OH की बजाय ग्रुप ऐड हो जाए COOH, that will become the group of carboxylic acid, or you can say the organic acids। बिल्कुल डिटो उसी तरह आएगा। पुट करके देखिए जरा एक बार इसमें 1, जैसे आप यहां 1 पुट करेंगे, you will get C1H3OH। it is called methanol, METHANOL, methanol। अब ये सारी सीरीज आपके सिलेबस में आपकी बार हटा दी गई है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इस जैसी सीरीज में आप CH2 ऐड करेंगे, you will get C2H5OH। it is called ethanol, ETHANOL, ethanol। so you can get any series by just putting CH2 addition। CH2 ऐड करिए और आपको नया मेंबर मिल जाएगा। so the series means homologous series can be of hydrocarbons or they can be of their derivative also, right? So I have tried to explain, once again I am taking the definition, the series of organic compound in which all the members can be represented by the common general formula।
हर सीरीज का एक फार्मूला होगा। अब देखो ये एल्केन का बताया, ये एल्केन का बताया, ये एल्काइन का बता दिया, और इसी तरह मैंने यहां पर दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले पॉसिबल हैं, अलग अलग सीरीज पॉसिबल है। प्योर हाइड्रोकार्बन की सीरीज भी पॉसिबल है और डेरिवेटिव की सीरीज भी पॉसिबल है। तो जो भी सीरीज आप पिक करेंगे उस सीरीज का एक जनरल फार्मूला आएगा। एल्केन का ये वाला है, एल्कीन का ये वाला है, एल्काइन का ये वाला है, राइट। इसी तरह से ये हमारे पास एल्कोहल का हो गया, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का हो सकता है, कीटोन्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग तरह के कंपाउंड की सीरीज पॉसिबल है। सभी को वर्ड दें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। So series of organic compound in which all the members can be represented by the same general formula। और हर किसी मेंबर में हमने देखा एक मेंबर बनाती, जैसे आपने CH2 ग्रुप ऐड किया उसमें नया मेंबर मिल जाएगा। हर मेंबर में से CH2 माइनस कर दो, प्रीवियस मिल जाएगा। बच्चों का खेल है, जैसे अभी 2 की काउंटिंग बोली थी, 2 की काउंटिंग में 2 ऐड करते जाओ, अगला मेंबर आ जाएगा। अगर आप माइनस करना शुरू करें तो पिछला मेंबर मिल जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, तो दीज आर द होमोलोगस सीरीज। मास का डिफरेंस यहां पर 14 यूनिट रहेगा और जो ग्रुप है उसका डिफरेंस रहेगा CH2। अब मैं आपके लिए लिखता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स कि इन सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। किसी भी होमोलोगस सीरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सबसे पहले बताया ऑल मेंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। यह एग्जांपल लिखे थे, एल्केन का अलग, एल्कीन का अलग, एल्काइन का अलग, एल्कोहल का अलग। शायद समझ में आ गया होगा। सेकंड है ऑल मेंबर्स शो कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल मेंबर्स शो कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो प्रॉपर्टी पहले ग्रुप की है वही पहले मेंबर की वही दूसरे की होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप CH4 ये पहला मेंबर लेते हैं एल्केन सीरीज का, इसको आप बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, यू विल गेट CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। हीट भी निकलेगा इसमें। अब अगर फर्स्ट मेंबर के बाद आप सेकंड लेते हैं, थर्ड लेते हैं, फोर्थ लेते हैं, कोई भी लेते हैं, मान लीजिए फोर्थ लिया हमने, यू विल अगेन गेट CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। तो कोई भी मेंबर लो सीरीज का सेम प्रॉपर्टीज आएंगी। इसी तरह एल्कोहल में फर्स्ट मेंबर की जो प्रॉपर्टी है वही सेकंड की है, वही थर्ड की है। केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, देयर बॉइलिंग पॉइंट, देयर फिजिकल स्टेट, दे ग्रेजुअली गो ऑन चेंजिंग। धीरे धीरे वो बदलते हैं। क्यों बदलेंगे बेटा? क्योंकि मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो उसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है, और डेंसिटी इंक्रीज होने से उनके बॉइलिंग पॉइंट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? पहले गैस होगा, फिर वो लिक्विड आ जाएंगे हायर मेंबर, और उससे हायर मेंबर क्या आ सकते हैं? सॉफ्ट सॉलिड आ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में यहां लिख रहा हूं। थर्ड पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। Physical properties goes on changing gradually, not suddenly. They will change gradually. My point is clear? और अगली चीज, पूरी सीरीज के अंदर all members have same common फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अब आप कहेंगे ये क्या भला होती है? क्योंकि अब की बार CBSE ने कहीं से कुछ कट कर दिया, कहीं से कुछ कट कर दिया है, तो फंक्शनल ग्रुप अभी तक आपसे डिस्कस नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनल ग्रुप का डालूंगा आपके लिए, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा।
अगली चीज हम बात कर सकते हैं जो लगभग लास्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि 4 हो गए हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग ऑफ हियर। फिफ्थ प्रॉपर्टी, each successive member differ by CH2 group and 14 mass unit। हमने देखा 14 मास यूनिट का डिफरेंस आएगा और CH2 ऐड करके आप बच्चों को दिखाया था अभी, तो इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। सो दीज आर द 5 जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और यू कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि हमारे पास ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है। होमोलोगस सीरीज मींस द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑल द मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला, सभी का सेम जनरल फार्मूला रहेगा, and each successive member differ by CH2 group or 14 mass units, ठीक है। homologous series may be of hydrocarbon or that may be of derivative of hydrocarbons, किसी के भी हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन की तीनों बता दिया आपको, एल्किन, एल्किन और एल्काइन, साथ में एल्कोहल का जिक्र मैंने कर दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कर दिया है, एल्डिहाइड वगैरह अब आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज वो भी मैं आपको बता देता, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनल ग्रुप का आपसे शेयर करूंगा, तो प्लीज वो जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है और वो किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मोर देन सफिशिएंट है। यस, एक चीज रहेगी, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम कॉमन मेथड। सारे मेंबर एक कॉमन मेथड लगाइए, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस कैन बी द एडिशन एंड हैव कॉमन फंक्शनल ग्रुप एंड डिफर बाय CH2, ठीक है, CH2 ग्रुप एंड 14 यूनिट ऑफ मास। So this is all about the video. Small topic, smart topic. Learn it properly. See the video complete without skip once again, and you will get it clear. Definitely इस पोर्शन से आपको अपने एनुअल एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, चैप्टर की लेंथ कम होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, ठीक है। So that's about it. Wait for the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.